Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Divishri here. I'm working as an assistant professor. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it. The benefits of Unacademy Plus are daily live classes, structured courses as per CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access. So you will be getting daily live classes plus along with the PDF, right? You will be getting structured courses as per the CSIR syllabus, live tested quizzes. You will be having, apart from this, you will be having a DCS, that is doubt clearing sessions to clear your doubts. Then you have unlimited access to all the educators at single subscription, right? So if you want to join Unacademy Plus, you can join it by using my referral code, right? So if you join Unacademy Plus, you can use my referral code DEBA1, right? You can use this code. You can avail this with minimum price and also with the maximum achievement, right? Okay, so these are the prices. For 1 month it is 1890, for 3 months it is 4725, for 6 months 7560, for 12 month it is 9450. If you use my code DEBA1, you will be getting a 10% off on all this. So don't forget to use my code DEBA1 to get benefits, right? Coming to gene and chromosome, today's topic we will be discussing, right? First, let me tell you, suppose this is a DNA, right? This is what? This is DNA. Now this DNA will be binded. These are called nucleosome protein. These are called histone proteins, right? Histone proteins, right? Now this DNA will start wrapping around this. These are histone, right? Now after this it will form a structure like this, right? So this is what we call chromosome, right? And this is we call DNA, and gene is a part of DNA. Gene is what? It is a part of DNA. What is histone proteins and all we will study. So this is DNA which is wrapped around the histone proteins to form nucleosome. Then they form a coiled structure called chromosome. Now let's move to your central dogma. Now what do you understand by central dogma? Central dogma means what? It explains how the information is being transferred from DNA to proteins, right? So if I explain you, अगर मैं ये बात आपको डिस्कस करती हूँ कि कैसे इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचता है, उसे पाथवे को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल डॉग्मा. अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये हो गया आपका डीएनए, राइट? अब हमें पता है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास है वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? वो एक्सप्रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, राइट? अगर मान लो कोई एक जीन में ब्लैक कलर का हेयर कलर कोड करता है, राइट? कोई एक जीन एक कैरेक्टर होल्ड करते हैं ब्लैक कलर ऑफ हेयर कलर, जब तक ये डीएनए ये बाल को नहीं बनाएंगे, हेयर को नहीं बनाएंगे, तब तक हमें पता चलेगा कौन सा कलर है? नहीं, राइट? तो ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो उसी के लिए एक पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल डॉग्मा, राइट? अब सेंट्रल डॉग्मा की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है? डीएनए से आपका बनता है क्या? आरएनए, एंड आरएनए से आपका बनता है क्या? प्रोटीन्स, राइट? किसी किसी केस में क्या होता है? आरएनए से डीएनए का भी बनने का चांसेस होता है, एंड डीएनए से भी डीएनए का फॉर्मेशन होता है. इसी हिसाब से हमने उनके अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग नेमिंग किया है, राइट? अगर आप ध्यान से देखोगे, यू कैन सी हियर. सो डीएनए से डीएनए का बनना, उसको हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या है? जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट? जब आरएनए से डीएनए का बनना, मतलब डीएनए कहाँ से, आरएनए कहाँ से बन रहा है? आरएनए बन रहा है आपका डीएनए से, राइट? तो उसको हम बोलते हैं क्या?
ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जो ये वाला एरो है उल्टा है, ट्रांसक्रिप्शन से उल्टा है, राइट? तब हम उसको बोलेंगे क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट? अब आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्लियर एवरीवन? यस। सो सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा चीज को हम बोलते हैं क्या? दिस एंटायर पाथ वी कॉल दिस सेंट्रल डोग्मा। अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं कितना है, देखिए ये है, हो गया नंबर 1 डीएनए से डीएनए का बनना, नंबर 2 हो गया ट्रांसक्रिप्शन, राइट? नंबर 3 हो गया ट्रांसलेशन, नंबर 4 हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही तो है, बस। समझ आया? डीएनए जब अपना खुद का प्रोडक्शन करता है विद डीएनए, तब हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट? लेकिन अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए के थ्रू, तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, आरएनए के थ्रू। अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है आरएनए से, तब हम उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है, राइट? ओके, यहाँ पे भी मैंने आपको ये दिखाया है क्या? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स, राइट? और फिर अगर ये उल्टा जाएगा, यहाँ भी उल्टा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? और इसी को बोलते हैं डीएनए टू डीएनए को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा। क्लियर हुआ सेंट्रल डोग्मा, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगी। मान लो ये कोई डीएनए है, राइट? अब डीएनए क्या करेगा? पहले डीएनए चांसेस है कि वो फिर से डीएनए बनाए और आरएनए बनाए, राइट? मान लिया कि मैंने डीएनए ने फिर से डीएनए बनाया, राइट? डीएनए ने क्या बनाया? फिर से डीएनए बनाया, राइट? जब ये डीएनए बन रहा था तो उसमें कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? एक तो बहुत लार्ज चेंज आए, राइट? लार्ज चेंजेस भी हो सकता है, जो भी चेंजेस हुआ है लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल चेंज भी हो सकता है, राइट? अगर लार्ज चेंजेस हुआ है तब हम उसको बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेशन। अगर चेंजेस लार्ज है तब हम उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अगर चेंजेस स्मॉल है तब हम उसको बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। इसी के थ्रू हम उसको बोलते हैं, जब डीएनए का डैमेज होता है तो म्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, डीएनए डैमेज, राइट? तब हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रिपेयर्ड डीएनए, राइट? जैसे ही डीएनए रिपेयर हो गया तो वो पहले क्या फॉर्म करेगा? वो पहले फॉर्म करेगा प्री एमआरएनए, राइट? फिर ये फॉर्म करेगा क्या? एमआरएनए। फिर ये फॉर्म करेगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, राइट? फिर ये आपका फॉर्म करेगा क्या? फंक्शनल प्रोटीन्स। क्लियर हुआ? इसी को हम बोलते हैं क्या? रेगुलेशन। ऐसे ही सेल चलता रहता है, राइट? अब मैं यहाँ पे आपका नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट? अगर कुछ चेंजेस ज्यादा हुआ तब हम उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, स्मॉल हुआ तब हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन, रिपेयर हो गया तब हम उसको बोलते हैं रिपेयर्ड डीएनए, राइट? डीएनए से प्री एमआरएनए का बनना, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। फिर यहाँ पे प्री एमआरएनए से मैच्योर्ड एमआरएनए बनना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट? उसी तरह से एमआरएनए से प्रोटीन का बनना हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, एंड प्रोटीन से फंक्शनल प्रोटीन का बनना हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन, राइट? सो ये हो गया आपका पूरा रेगुलेशंस। पहला स्टेप ये हो गया, राइट? फिर यहाँ आया, फिर आया यहाँ, फिर आया यहाँ, बस। क्लियर हुआ ये बात?
ओके, दिस इज अ एंटायर चार्ट कि कैसे पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। अगर हम जीनोम की बात करते हैं, बेसिकली आपका जीनोम क्या है? जीनोम है आपका सम ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल, ऑल द जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से देखिए, ऑल द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? या तो ये डीएनए है या तो ये आरएनए है, राइट। जब हम पूरे सारे जेनेटिक मटेरियल को इकट्ठा बोलते हैं तब हम उसको बोलते हैं जीनोम, राइट। और ये जो टर्म है जीनोम, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका रिंकलर ने। क्लियर? ओके, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक तो आपका सेल्यूलर होते हैं और एक आपका होता है क्या? नॉन सेल्यूलर, और उसको हम बोलते हैं क्या? ए सेल्यूलर भी आप बोल सकते हो, सेल्यूलर, ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर में क्या है? वायरसेस एंड विरोइड्स। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेल नहीं होता है, उनके पास या तो डीएनए होता है या तो आपका आरएनए होता है, डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, वो भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड, राइट। तो इनमें कोई आपका सेल नहीं होता है, राइट। अगर हम प्रोकैरियोट सेल्यूलर की बात करते हैं, मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो सेल के हेल्प से बनता है, राइट। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो गया आपका? एक हो गया आपका प्रोकैरियोट्स, एक हो गया आपका यूकैरियोट्स, राइट। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो कि आपका क्या है? सर्क्यूलर है, राइट। सो ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, जो कि दो तरह के होते हैं, या तो सेल्यूलर या तो आपका एसेल्यूलर, राइट। ओके, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है? एक तो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर मटेरियल भी बोल सकते हो, राइट। दूसरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में भी दो चीजें मिलते हैं, एंडोसिम्बायन एंड ऑर्गेनेल। एंडोसिम्बायन की बात करती हूँ तो यहाँ पे होता है आपका कप्पा पार्टिकल्स एंड सिग्मोइडल पार्टिकल्स, राइट। अगर हम ऑर्गेनल की बात करते हैं, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट। ये हो गया आपका यूकैरियोट्स। ओके, अगर हम सी वैल्यू की बात करते हैं, जब भी हम डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन, जीनोम के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? सी वैल्यू। तो सी वैल्यू बेसिकली क्या है? ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, किसका? जीनोम का। जब भी हम जीनोम के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे उसको हम बोलते हैं सी वैल्यू, राइट। ओके, सी वैल्यू बोलते हैं, राइट। ओके, ईस्ट की बात करते हैं। बेसिकली ईस्ट क्या है आपका? ईस्ट में कितने बेसेस होते हैं? 12 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ह्यूमन में कितने बेस पेयर होते हैं? 33 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ड्रोसोफिला में होता है 170 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, राइट। तो समझ आया बात? सी वैल्यू क्या है? जब भी हम सी वैल्यू मतलब क्या, जीनोम के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सी वैल्यू, राइट। ये बेसिकली अमाउंट ऑफ डीएनए को ये सिग्निफाई करता है, जो भी आपके न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए है उसको हम बोलते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात करती हूँ मैं, यहाँ पे पैराडॉक्स नहीं होगा, राइट। ओके, अगर हम सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात करते हैं, ये क्या है? जब भी आपका क्या होता है? genome size does not uniformly increase with respect to complexity of organism। मतलब क्या होता है? अगर हम लोअर यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो उनमें क्या होता है? जो सी वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, राइट। लेकिन अगर हम अपर यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो सी वैल्यू जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी से, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसी को हम बोलते हैं क्या? सी वैल्यू पैराडॉक्स। समझ आया सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है? अगर हम लोअर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो सी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी के साथ।
लेकिन अगर हम हायर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो सी वैल्यू जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी से, तो उसी को हम बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स, राइट। अगर हम जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये रेफर करता है अलग अलग लेंथ और सीक्वेंस किसका, डीएनए का, राइट। मेजर थ्रू रीनेचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ डीनेचर्ड डीएनए। मान लो ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। अगर मैंने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाई टेम्परेचर में एक्सपोज किया तो क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा, राइट। अब जब ये रीनेचुरेशन क्या है, सुनो, अब जब ये क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये जब भी टेम्परेचर कम होने लगेगा, डिक्रीज टेम्परेचर में ये फिर से क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाएगा, राइट। यही इसी को हम बोलते हैं रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। मतलब पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये हुआ आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले तो ये हो गया क्या, डीनेचुरेशन, राइट। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड में बदल गए जिसको ईच स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सी, और फिर से ये जब टेम्परेचर कम हो गया तो डबल स्ट्रैंडेड में बदल गया, राइट। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके ग्रेट। नेक्स्ट यही है, देखो यही मैंने जो अभी आपका डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे दो, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल सिंगल फिर डबल, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर हुआ, राइट, ओके। नेक्स्ट हम एक चीज देखेंगे, डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है, आपका ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस समझना है, राइट। अगर मान लो हमने एक कैपिटल से रखा है, किसके लिए कैपिटल से रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, एट टाइम टी, और सी नॉट अगर हम बोलते हैं, सी नॉट क्या है, सी नॉट मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो क्या होगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूरिंग रीनेचुरेशन इज गिवन बाय dc by dt इज प्रोपोर्शनल टू kc स्क्वायर। अच्छा, मैं ये आपको अच्छे से समझाती हूँ, ये देखिए, ये हो गया मान लो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, राइट, और मैंने इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सी से डिनोट किया। फिर जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया तो ये फिर से रिनेचर हो गया, राइट। अब मान लो मुझे क्या करना है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब जो आपका dc by dt है वो प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्ट्रैंड है, 2, तो सी स्क्वायर लिखा, राइट। अब क्या होगा, हमें ये कांस्टेंट को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के सी स्क्वायर, राइट। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है बाद में ये कहाँ पे चेंज हो गया, डबल स्ट्रैंडेड में, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड का क्या हो रहा है, घटना हो रहा है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अब जब ये डिक्रीज हो रहे हैं तब हम उसको लिखते हैं क्या, माइनस के सी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए माइनस लिखते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डिक्रीज होते जा रहा है। समझ आया, राइट, क्लियर हुआ। इसी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो आपको मिलेगा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज क्या है, c by c नॉट इज इक्वल्स टू 1 by 1 प्लस c नॉट के टी, राइट। देख लो यही वाला फॉर्मूला मिल गया, राइट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलती हूँ, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है कॉट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिनेचुरेशन से, एंड
इन्वर्सली होता है के से, राइट। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिनेचुरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/k एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉट हाफ। ये हो गया आपका ग्राफ, राइट। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट हाफ। अब यहाँ पे कॉट हाफ देखो बढ़ता जा रहा है, राइट, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट हाफ, राइट। ओके, अगर हम जीन की बात करते हैं, बेसिकली जीन क्या है, आपका फंक्शनल यूनिट है जो कि आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, राइट। अब जीन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो ये ट्रांसक्राइब हो सकता है या तो ये नॉन ट्रांसक्राइब हो सकता है। अगर हम ट्रांसक्राइब की बात करते हैं, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, कैसा, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग क्या है, जो कोड करता है किसी कैरेक्टर को, और नॉन कोडिंग क्या है, जो कोड नहीं करता है, राइट। अभी हम देखेंगे कोडिंग नॉन कोडिंग क्या है। कोडिंग मतलब क्या, कोड करता है, क्या कोड करता है, मतलब ये mRNA के फॉर्मेशन को कोड करता है, राइट, तब हम उसको बोलते हैं कोडिंग, मतलब इससे mRNA का फॉर्मेशन होता है, राइट। अगर हम नॉन कोडिंग की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट अदर्स RNA का फॉर्मेशन होगा, जैसे आपका tRNA हो गया, rRNA हो गया, राइट, इनका फॉर्मेशन होगा, mRNA का नहीं होगा। mRNA का फॉर्मेशन होगा सिर्फ और सिर्फ कोडिंग से, नॉन कोडिंग से आपका होगा tRNA एंड rRNA, राइट। अब जितने किसी भी एक सेल को बहुत जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ जीन चाहिए होता है किसी भी एक सेल को, राइट, वो जो मिनिमम नंबर ऑफ जीन होता है वो है आपका 300। समझ आया, मिनिमम नंबर ऑफ जीन रिक्वायर्ड बाय एनी सेल फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इज 300, मिनिमम चाहिए होता है। अगर हम जीन की बात करते हैं, बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, इंटरप्टेड, नॉन इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब क्या, कुछ चीज इंटरप्ट करता है, मतलब कुछ चीज है जो बीच में टोक रहे हैं, राइट, उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, इंट्रॉन्स। लेकिन अगर नॉन इंटरप्टेड की बात करूं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो बीच में टोक रहा है, मतलब डू नॉट कंटेन इंट्रॉन्स, राइट। अब ये जो इंटरप्टेड जीन है ये कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, राइट, एंड नॉन इंटरप्टेड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स। यहाँ भी मैंने रेड से लिखा है, यहाँ भी मैंने रेड से लिखा है, राइट। क्लियर हुआ। अभी जीन कितने टाइप के हैं, दो तरह के, इंटरप्टेड, नॉन इंटरप्टेड। इंटरप्टेड में क्या होता है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में होता है। नॉन इंटरप्टेड में इंट्रॉन्स नहीं होता है, बेसिकली ये आपके प्रोकैरियोट्स में मिलता है, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन दिया है। इंट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए आरएनए में जो कोई कुछ भी कोड नहीं करता है, डू नॉट डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स, और उसको रिमूव किया जाता है कहाँ से, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं प्री एमआरएनए, राइट। कैसे रिमूव किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू। क्लियर। जो एक्सॉन्स होते हैं वो भी आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए एंड आरएनए में होता है, ये कंजर्व होते हैं, ये कोड करते हैं, राइट। The process by which DNA is used as a template to create mRNA is called transcription. तो एक्सॉन्स को हम बोलते हैं कोडिंग पार्ट और इंट्रॉन्स को हम बोलते हैं क्या, नॉन कोडिंग। क्लियर। इसको रिमूव, जब ये प्रेजेंट रहता है तब हम उसको बोलते हैं प्री एमआरएनए, फिर इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग, तब जाके एमआरएनए बनता है, राइट। जो एक्सॉन्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बोथ द 5' एंड 3' एंड द अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ एमआरएनए, जो कि ट्रांसलेट नहीं हुआ है वहां पे होता है, जहां ये क्या कंटेन करता है, ये मतलब इसमें रहता है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, राइट। ओके, ये हो गया 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स की। अगर हम बात करती हूँ मैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स में आप बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिमूवल, राइट। अगर हम बात करते हैं जो इंट्रॉन्स इन प्रोटीन कोडिंग जीन्स,
जो भी इंट्रॉन्स प्रोटीन कोडिंग जीन्स में प्रेजेंट होता है उनको रिमूव करता है आपके स्प्लाइसोसोम्स, राइट। जो भी इंट्रॉन्स आपके टीआरएनए में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करता है कौन, प्रोटीन्स, राइट। सेल स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स भी होते हैं जो खुद ही को वो रिमूव करते हैं, right, which catalyze their own removal from mRNA, tRNA and rRNA precursors using guanosine 5 triophosphate और अदर न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर, इन्हीं को बोलते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 वाले देखो इंट्रॉन जो होते हैं वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, राइट। ग्रुप 1 वाले क्या करते हैं, ये अपना खुद का स्प्लाइसिंग करते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से करते हैं, ये हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 प्राइम जीटीपी, राइट। लेकिन जो ग्रुप 2 है वो क्या करते हैं, उनको जीटीपी की जरूरत नहीं होता है, ये भी सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं लेकिन इनको जीटीपी का जरूरत नहीं होता है, राइट। इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रुप 2। जीटीपी क्या है, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्रुप 1 को जीटीपी का जरूरत होता है जो कि 5 प्राइम है, यहाँ पे प्लस जरूरत होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं होता है माइनस। समझ आया बात, ग्रुप 1 ग्रुप 2, राइट, ओके। नेक्स्ट ये मैंने एक डायग्राम दिखाया, ये देखिए आपका इंट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये राइट। फिर इसको क्या करते हैं, इन चीजों को रिमूव किया जाता है, ये डीएनए आरएनए, अब देखिए एमआरएनए नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया, इसलिए इसका लेंथ जो है वो छोटा हो गया है, राइट, ओके। अभी हम टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स की बात करती हूँ मैं, बेसिकली ये है आपका टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स, राइट। अगर मैं टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स की बात करती हूँ तो ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्की इंट्रॉन, क्योंकि ये बेसिकली आपके आर्की में प्रेजेंस होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में देखा जाता है, राइट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर। न्यूक्लियर जीन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को हम बोलते हैं एयूएजी भी बोलते हैं, राइट। और एक होता है आपका ऑर्गेनल जीन में भी आपका इंट्रॉन होता है, ऑर्गेनल जीन में जो इंट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्विंट्रॉन और ग्रुप 1 2 3। क्लियर हुआ। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंट्रॉन की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, राइट। प्रोकैरियोट्स में आपकी 3 कैटेगरी के होते हैं, आर्की इंट्रॉन जो कि आपके आर्की बैक्टीरिया में मिलते हैं, फिर आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया में मिलता है, राइट। यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर जीन में भी होता है, ऑर्गेनल जीन में भी होता है। न्यूक्लियर जीन में ये 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और ऑर्गेनल में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्विंट्रॉन ग्रुप 1 2 एंड 3, राइट। न्यूक्लियर जीन को एमआरएनए का एक फॉर्म है आपका एयूएजी कोडोन, राइट, ओके ग्रेट। ये भी मैंने आपके एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रॉन्स का एक स्लाइड रखा है, जो ग्रुप 1 होते हैं बेसिकली ये कहाँ मिलता है, आरआरएनए, ऑर्गेनल, फ्यू बैक्टीरियल आरएनए, राइट। ये सेल स्प्लाइसिंग करता है। ग्रुप 2 जो होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक आरएनए, जो कि आपका कहाँ पे है, ऑर्गेनल एंड आपका प्रोकैरियोट्स में सेल स्प्लाइसिंग, राइट। न्यूक्लियर एमआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, वो नॉन सेल स्प्लाइसिंग है, उनको एसएनआरएनए का जरूरत होता है, राइट। और दूसरा है आपका टीआरएनए जो कि टीआरएनए में ही प्रेजेंट होता है, ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू होता है। एंजाइम जबकि प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रोटीन के थ्रू भी इसका स्प्लाइसिंग होता है। क्लियर हुआ बात, यस, ओके। सो थैंक यू students for watching the session. If you like it, you can join Unacademy Plus with the help of my referral code. Thank you so much students. Keep watching, keep learning. Happy learning. Thank you.